Hello, good morning, students. Today we are going to take the textbook Merchant of Venice, and from that we are going to take Act 1, Scene 3. Uh, in this scene, we can see Shylock, the Jewish moneylender. He is introduced by Shakespeare. Shakespeare, what does he do? First, he introduces the main characters, that is Antonio, Bassanio, and their friends. Then the main actress or the main heroine of the scene of the play, Portia and Nerissa, and then the comedian will come in. The villain has come in right now. The villain is Shylock the Jew. He is the most powerful dramatic figure in the play. If you see, according to his character, Shylock stands out better than the rest. If you have seen the movie Sholay, or if you can ask your parents about the movie Sholay, in this movie there was one character, Gabbar Singh. The character of Gabbar Singh was such a character that the movie was more followed for the villain than for the heroes, Amitabh Bachchan and Dharmendra. So in the same way here, Shylock is the Gabbar Singh. He is the one who has a very strong, potent character, and the way he stands in front of the Duke is really praiseworthy. Shylock's hatred for Antonio intensifies the drama. Having been ridiculed by Antonio for years, he does not want to lend money to his friend Bassanio, but foreseeing an opportunity to take his revenge on Antonio, he agrees to give the loan on a bond, which would allow Shylock to cut off a pound of Antonio's flesh if he fails to repay the loan in time. The bond story is the main plot around which all action in the play takes place. तो ये जो सीन है एक्ट 1 सीन 3 एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन है. यहाँ पर हमारे जो मेन विलन हैं शाइलॉक, इसका इंट्रोडक्शन होता है. और शाइलॉक इस प्ले का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह अंटोनियो और बेसानियो को कैरेक्टर को फीका कर देता है. तो ये ऐसा कैरेक्टर है, जैसा मैंने इंग्लिश में बताया कि जो गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर था शोले में, वही कैरेक्टर यहाँ पर शाइलॉक का है. बेसानियो जब शाइलॉक के पास पैसे उधार मांगने जाता है, बेसानियो ये अंटोनियो का दोस्त है, शाइलॉक जानता है कि बेसानियो अंटोनियो का दोस्त है, और वो शाइलॉक अंटोनियो से इतना नफ़रत करता है कि वह बेसानियो को पैसे नहीं देना चाहता. लेकिन शाइलॉक एक बहुत दूरंदेशी व्यक्ति है. वह सोचता है कि अगर उसे एक मौका मिल जाए, अगर वह अंटोनियो को लोन के जाल में, उधार के जाल में फांस ले और उसे एक मौका मिल जाए बदला लेने का, तो वह अपने ज़िंदगी भर का बदला चुका सकता है. वह अंटोनियो से इतना नफ़रत क्यों करता है? क्योंकि अंटोनियो बार बार उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसकी मजाक उड़ाता है, उसको भला बुरा कहता है, उसके पैसे कमाने के तरीक़ों को गलत समझता है, और इस वजह से शाइलॉक भी अंटोनियो को उतना ही नफ़रत करता है. शाइलॉक का इरादा है कि वो अगर अंटोनियो को पैसे दे दे, तो अगर अंटोनियो पैसे वापस नहीं कर पाए तो वो अंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, लगभग ये 1 पाउंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द हार्ट अप्रॉक्सीमेटली. जो हृदय, अपना जो हृदय होता है, अपना जो दिल होता है, उसका जो वजन होता है 1 पाउंड का होता है. तो शाइलॉक का इरादा है कि वो अंटोनियो के शरीर में से उसका हृदय ही निकाल दे, उसका दिल ही निकाल दे, कि ताकि वो मर जाए. ना रहेंगी बाँस और ना बजेंगी बाँसुरी. उसका इरादा है कि अगर अंटोनियो रास्ते से साफ़ हो जाए, अंटोनियो उसके रास्ते का कांटा है, अगर वो ये कांटा को साफ़ कर दे तो शाइलॉक मनमानी मुनाफा कमा सकता है. तो ये जो एक बॉन्ड स्टोरी है, इस बॉन्ड स्टोरी के इर्द गिर्द पूरा प्ले, पूरा ड्रामा इसी बॉन्ड स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है. तो ये कितना पक्का कैरेक्टर है, कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इससे हमें समझ में आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द प्ले. Act 1 Scene 3 Venice, a public place. Enter Bassanio and Shylock. Shylock: 3,000 ducats. Well, Bassanio: aye sir, for 3 months. Shylock: for 3 months? Well, Bassanio: for the which, as I told you, Antonio shall be bound.
Shylock, Antonio shall become bound. Well, Bassanio, may you steed me? Will you pleasure me? Shall I know your answer? Shylock, 3,000 ducats for 3 months and Antonio bound. Bassanio, your answer to that? Shylock, Antonio is a good man. Bassanio, have you heard any imputation to the contrary? Shylock, oh, no. My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. Yet his means are in supposition. He hath an argosy bound to Tripolis, another to the Indies. I understand, moreover, upon the Rialto, he hath a third at Mexico, a fourth for England, and other ventures he hath squandered abroad. But ships are but boats, sailors but men. They be land rats and water rats, water thieves and land thieves. I mean pirates. And then there is the peril of waters, winds and rocks. The man is notwithstanding sufficient. 3,000 ducats, I think I may take his bond. तो इस सीन की शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि शाइलॉक के पास बसानियो जाता है और बसानियो से शाइलॉक से बसानियो 3,000 डकेट्स, ये 3,000 डकेट्स क्या है? 3,000 सोने की अशरफियाँ, मुद्राएं, सोने की मुद्राएं वो उससे उधार में मांगता है। अब बसानियो तो ऐसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है नहीं कि शाइलॉक बसानियो को 3,000 डकेट्स दे दे। तो बसानियो अंटोनियो के नाम पर ये पैसा उधार मांगता है। शाइलॉक अंटोनियो से बहुत नफ़रत करता है। उसका दिल तो होता है, मन तो होता है कि बसानियो को मना कर दे, धुतकार दे, लेकिन उसे यहाँ पर एक मौका भी दिखता है अपना बदला निकालने का। तो उसके मन में जो एक प्लान चलती है, जो हम देख रहे हैं ना, 3,000 डकेट्स, वेल फॉर 3 months, वेल अंटोनियो शैल बी बिकम बाउंड, वेल, ये जो वेल जो कर रहा है वो उसके मन में एक स्कीम चल रही है। वो अपने लिए समय घसीट रहा है, समय खींच रहा है बसानियों से, और बसानियों के सवाल का तुरंत जवाब नहीं देता, जिससे बसानियो चिढ़ जाता है और बसानियो से बोलता है, मे यू स्टीड मी, विल यू प्लेजर मी, शैल आई नो योर आंसर। बसानियो चिढ़ के उससे पूछता है कि आप मुझे बताओगे कि आप क्या मुझे पैसे देने वाले हो या नहीं। तो शाइलॉक कहता है कि 3,000 अशरफिया और 3 महीने के लिए, और अंटोनियो इसका ज़िम्मेदार होगा। अंटोनियो जिम्मेदारी लेता है इस पैसों का। बसानियो फिर से बोलता है, तो आप बताइए ना, आपका जवाब क्या है? तो बोलता है, अंटोनियो एक अच्छा आदमी है। तो बसानियो बोलता है, तो क्या आपने कभी अंटोनियो के बारे में कुछ बुरा सुना है? शाइलॉक उसका जवाब देते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि अंटोनियो अच्छा आदमी का मतलब ये है कि मैं उसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हाँ, अंटोनियो अगर जिम्मेदारी लेता है तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं आपको उधार पैसे दूँ या नहीं दूँ। ये मैं इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने अंटोनियो के बारे में सुना है कि शायद उसके पास पैसे तो है नहीं अभी, क्योंकि उसने अपने पूरे पैसे जहाज़ों में लगा दिया। उसका एक जहाज़ जो है वह ट्राइपोलिस की तरफ जा रहा है, दूसरा जहाज़ जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, तीसरा एक मैंने रियाल्टो पे मुझे पता लगा, रियाल्टो मतलब स्टॉक मार्केट, जहाँ पे सब मर्चेंट्स लोग, व्यापारी लोग मिलते हैं ना, उसको रियाल्टो कहते हैं। एक वहाँ पर मुझे पता लगा कि वो मेक्सिको में एक जहाज़ गया, और एक चौथा जहाज़ उसका इंग्लैंड में गया, और उसके ऐसे बहुत सारे वेंचर्स है। उसने सभी अपने पैसे जो है वो जहाज़ पर लगा दिया। जहाज़ों का क्या कहना, जहाज़ तो लकड़ियों की बनी होती है, उसे कुछ भी हो सकता है, पानी में चट्टानों से टकरा कर टूट सकता है, और पानी में डकैत है, डाकू है, समुद्री डाकू अगर उसके जहाज़ को लूट लिए तो, और उसका सामान अगर समुद्र से बाहर निकल भी गया और ज़मीन पर आया, तो ज़मीन पर भी तो डाकू लोग होते हैं, वहाँ पर भी लोग उसका सामान लूट सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बॉन्ड ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि अंटोनियो ठीक है, अंटोनियो गारंटर बन के ठीक है, मैं ये बॉन्ड ले लेता हूँ। तो अगर तुम कहते हो कि अंटोनियो इसका गारंटी लेता है, तो मैं ये बॉन्ड या आपको ये उधार देने के लिए मैं तैयार हूँ। बेसानियो कहता है, बी अश्योर्ड यू मे। शाइलॉक, आई विल बी अश्योर्ड आई मे, and that I may be assured, I will bethink me
May I speak with Antonio? Bassanio. If it pleases you to dine with us. Shylock. Yes. To smell pork? To eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into? I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. But I will not eat with you, drink with you, nor pray with you. What news on the Rialto? Who is he? Comes here. उतने में एंटर अंटोनियो। तो जब शाइलॉक कहता है कि मैं अश्योरिटी लेना चाहूँगा, तो बेसानियो कहता है कि अगर आपको अश्योरिटी लेना है आप अश्योरिटी ले सकते हैं। तो शाइलॉक बोलता हाँ बिल्कुल, मैं तो अश्योर्ड होना चाहता हूँ, मुझे तो अंटोनियो के मुंह से सुनना है। आपने बोल दिया कि अंटोनियो मुझे पैसे दे देगा, अंटोनियो इसके ज़िम्मेदार रहेगा, तो इससे मैं तो सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अंटोनियो के मुंह से ये बात सुनूँ। तो बेसानियो कहता है अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए ना, आज हमारे घर पर दावत है, आप हमारे दावत पे आ जाइए, आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। शाइलॉक इस बात से चिढ़ जाता है। शाइलॉक कोई दोस्ती करने तो थोड़ी आया है, शाइलॉक एक बहुत बड़ा व्यापारी है। अंटोनियो और शाइलॉक ये बहुत बड़े व्यापारी है और ये एक दोनों के कट्टर दुश्मन हैं। तो भला शाइलॉक उनके यहाँ खाना खाने क्यों चले जाए, दावत पर क्यों चला जाए? तो शाइलॉक चिढ़ते हुए बोलता है येस टू स्मेल पोर्क। पोर्क होता है सूअर का मांस। तो बोले हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ के सूअर का मांस सूंघूं? अरे उस सूअर के मांस में तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है नाजराइट, यानी रिफरिंग टू जीसस क्राइस्ट, उसने इस जानवर के अंदर शैतान भर दिया था, शैतानों को उसके अंदर डाल दिया था। मैं तुम्हारे साथ सौदा करूँगा, तुम्हारे साथ खरीदी करूँगा, तुम्हारे को बेचूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, ये सब करूँगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊँगा, तुम्हारे यहाँ आकर पानी वानी नहीं पीऊँगा और ना ही तुम्हारे साथ में कोई प्रार्थना में शामिल हो जाऊँगा। उतने में उसे अंटोनियो आते हुए दिखता है। तो बोले अरे रियल्टो पर देखो कौन आ रहा है, हु इज़ ही हु कम्स हियर। उतने में अंटोनियो की एंट्री होती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बाइबल का बहुत जिक्र होता है, तो इसमें से एक जो बाइबल का जिक्र हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इससे भी कुछ सवाल पूछ लिया जाता है। शाइलॉक जो नाजराइट की जो बात कर रहा है, नाजराइट ही इज़ रेफरिंग टू जीसस ऑफ नाजरत। जीसस जो थे नाजरत में रहते थे, तो नाजरत के नाम से वो मशहूर थे, नाजराइट के नाम से वो मशहूर थे। जो जिस इंसिडेंट के बारे में बात करें कि वो सूअरों में शैतान को डाल दिया था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ में एक लेक था, एक तालाब था, उस लेक का नाम था गैलिली, द लेक ऑफ गैलिली। उसके टेरिटरी में आ गए थे। वहाँ पर एक रीजन था, उसका नाम था गेरासा। गेरासा के पास में आए थे और जैसे ही वो बोट से बाहर निकले तो बहुत बड़ी झुंड, एक ऐसा आदमी था जिसके अंदर बहुत बड़ी झुंड, शैतानों का एक बहुत बड़ा झुंड उसमें वास करता था। और जैसे ही जीसस उस बोट से बाहर निकले तो वो शैतान अपने कब्र से बाहर निकल के, वो एक्चुअली एक आदमी था जिसके अंदर शैतान था और ये अक्सर यहाँ पर आकर बैठा करता था। एक कब्रस्तान में जो कब्र थी, उस ज़माने जो कब्र होती थी वो गुफाओं में होती थी, तो उस गुफा के अंदर से वो बाहर निकला और वो जीसस के पास में आ गया। ये ऐसा व्यक्ति था कि उसमें इतनी ताकत थी कि कोई इसको बांध कर नहीं रख सकता था और कई बार उसको बांधने की कोशिश की गई, चेन से उसके हाथ और पैर को संकलियों में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर वक्त वो संकलियाँ तोड़ के भाग जाया करता था। वो इतना ताकतवर था और दिन और रात वो इस कब्रिस्तानों में भटकता फिरता था और चिल्लाता था, चीखता था, अपने आप को काटता था, जो तेज़ धार वाली चीज़ मिल जाए उससे अपने आप को काट लेता था, पत्थरों से अपने हाथ पैर में चीरे लगा लिया करता था। वो जीसस से थोड़ी दूरी पर ही था, तो जीसस को देखते ही वो अपने घुटनों के ऊपर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्लाने लगा, जीसस सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, व्हाट डू यू वांट विथ मी। यानी जीसस परमेश्वर के पुत्र, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं, मुझसे आपको क्या चाहिए। भगवान के खातिर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे कोई सज़ा ना दे, मुझे माफ़ कर दे। और वो जीसस से ऐसा कहता था क्योंकि उसको पता था जो
ही सेड दिस बिकॉज जीसस वॉज सेइंग ईविल स्पिरिट कम आउट ऑफ दिस मैन। जीसस एक ऐसे आदेश दे रहा था कि जो शैतान था इस व्यक्ति के अंदर, कि तू इस व्यक्ति को छोड़ दे। तो जीसस ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम मॉब है। मॉब मतलब झुंड है। मैं अकेला इस इंसान में नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग इस इंसान के अंदर वास करते हैं। और वो जीसस से गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा कि उनको इस इलाके से या ये जो इलाका है इससे बाहर ना उसे भेज दे। तो जीसस ने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा झुंड था, जो सुअर का झुंड था। देयर वाज अ लार्ज हर्ड ऑफ पिग्स नियर बाय। और ये वहाँ के जो लोग हैं ना, सुअर पालते हैं। जैसे अपने यहाँ सुअर आवारा घूमते हैं, गंदगी खाते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं। इस सुअरों को बकरियों की तरह पालते हैं और इनके लिए चारा चराते हैं। तो वहाँ पर ये सुअर जो थे चारा चर रहे थे। तो वो शैतानों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सुअर है, तो जीसस से कहे कि एक काम करो, हमें इन सुअरों के झुंड में हमें भेज दीजिए। तो जीसस, क्योंकि जीसस का इनके ऊपर कब्जा हो गया था, तो जीसस ने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। और ये जो शैतानों ने इस आदमी का शरीर छोड़कर, सारे के सारे शैतान जो इस आदमी का शरीर छोड़कर इन सुअरों के झुंड में चले गए। और इस सुअर के सारे झुंड क्या किए, वो दौड़ते गए और वहाँ पर एक जो चट्टान पहाड़ था, पहाड़ से वो लोगों ने नीचे छलांग लगा दिए और पानी में डूबकर वो मर गए। तो इस वाक्य का जिक्र कर रहा है शायलॉक कि तुम्हारे ही खुदा ने, तुम्हारे ही भगवान ने सुअरों में शैतान भेज दिया था, और क्या आप चाहते हो कि मैं इस शैतान का मांस खाऊं? इसलिए शायलॉक, जो जूइश कम्युनिटी होती है, वो सुअरों का मांस नहीं खाते हैं। सुअर का मांस खाना उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि सुअर के अंदर शैतानों का वास है, शैतान सुअर के अंदर रहता है, इसलिए वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। तो ये वो घटना थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो जीसस क्राइस्ट द नाज़रेथ हील्ड अ मैड मैन by ordering the devils that possessed him to leave the man and enter into a herd of pigs। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो सेंट मार्क चैप्टर 5 1-13 आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस घटना के बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा। उतने में अंटोनियो आता है। तो बसानियो बोलते हैं, दिस इज़ सीनियर अंटोनियो, ये है हमारे मित्र सर अंटोनियो। शायलॉक असाइड अपने आप से कहता है शायलॉक कि ताकि बसानियो ना सुन ले। वो कहता है, हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन, बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही लेंस आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूसेंस हियर विथ अस इन वेनिस। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, आई विल फीड फैट द एंशिएंट grudge I bear him. He hates our sacred nation, and he rails even there where merchants most do congregate. On me, my bargains, and my well-won thrift, which he calls interest, cursed be my tribe if I forgive him. यहाँ पर भी देखो, शायलॉक फिर से बाइबल का एक रेफरेंस दे रहे हैं। तो शायलॉक को बाइबल की अच्छी खासी जानकारी है। शायलॉक ना केवल अपने जो रिलीजन हैं, जो जूइश कम्युनिटी के हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, बल्कि वो जीसस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उस ज़माने में जूइश कम्युनिटी और क्रिश्चियंस कम्युनिटी में आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो शायलॉक ये जानना चाहता था, यानी बचपन से उसको सिखाया गया था कि किस कारण से क्रिश्चियंस जूइश कम्युनिटी से नफ़रत करते हैं। तो उनका मेन कारण था जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन। जो जूइश कम्युनिटी ने जो जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर लटकाए थे, तब से लेकर जूइश कम्युनिटी से नफ़रत करने लगे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले। तो यहाँ पर एक रेफरेंस दे रहा है ये शायलॉक द फॉनिंग पब्लिकन के बारे में। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको थोड़ा सा एक पैराबल, एक कहानी है, जीसस की जो कहानी है वो एक कहानी है लूक चैप्टर 18, यहाँ 18 में 10-14 में दिया गया है। तो 10-14 में जो कहानी दी गई है वो आपको मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। द पैराबल ऑफ द फारिसीज एंड द टैक्स कलेक्टर। Jesus also told the parable to the people
who were sure of their own goodness and despised everybody else. Once there were two men who went up to the temple to pray. One was a Parsi and the other a tax collector. तो जीसस ये कहानी से उन लोगों को सबक देना चाहते थे, सीख देना चाहते थे जिन्हें लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे जैसा और कोई इंसान अच्छा नहीं है, बाकी सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। ऐसे लोगों को वो एक सीख देना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि वंस दे वर टू मैन हु वेंट अप टू द टेम्पल टू प्रे. One was a Parsi and the other was a tax collector. The Parsi stood apart by himself and prayed, I thank you, God, that I am not greedy, dishonest, or an adulterer like everybody else. I thank you that I am not like the tax collector over there. I fast 2 days a week and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and would not even raise his face to heaven, but beat on his breast and said, God, have pity on me, a sinner. I tell you, said Jesus, the tax collector and not the Parsi was in the right when when he went home. For everyone who makes himself great will be humbled, and everyone who humbles himself will be made great. तो इस प्रकार से जीसस ने एक कहानी बताई जहाँ पर एक टैक्स कलेक्टर था और एक पारसी थे। दोनों प्रेयर करने के लिए मंदिर जाते हैं। टैक्स कलेक्टर्स उस वक़्त में लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही टैक्स कलेक्ट करते थे। ये रोमन्स के लिए काम करते थे और रोमन्स अगर उनको चाहते थे कि उनसे 2 रुपये एज टैक्स कलेक्ट करे तो ये 4 रुपये टैक्स कलेक्ट करते थे। 2 रुपये वो रोमन को देते थे और 2 रुपये अपने पास रखते थे। तो लोग जानते थे इसके बारे में और लोग इनसे बहुत नफ़रत करते थे। तो जब ये टैक्स कलेक्टर और ये पारसी लोग यानी उस वक़्त में बहुत हाई कम्युनिटी थी, उनको मंदिर में प्रमुख स्थान दिया जाता था। तो जब ये पारसी वहाँ पर प्रेयर करने के लिए गया तो कहता है, भगवान आप तो जानते कि मैं कितना नेक इंसान हूँ, मैं बहुत नेक दिल इंसान हूँ, मैं हर रोज़ आकर प्रार्थना करता हूँ, दिन में बार बार आपको याद करता हूँ और फिर हफ्ते में 2 दिन मैं उपवास भी रखता हूँ। मैं बाकी लोग जैसा नहीं हूँ, ख़ास करके वो जो टैक्स कलेक्टर है ना वैसा तो नहीं हूँ। और इस प्रकार से वो भगवान के सामने अपनी बड़ाई करता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है। भगवान तो हर कुछ जानता है, भगवान को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये टैक्स कलेक्टर बेचारा अपना सर झुकाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपना सर उठाकर खुदा की तरफ देखे और अपने छाती को ठोक ठोक कर बोलता है कि हे खुदा, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा कर दे। तो जीसस बताता है कि देखो ये लोग जब घर जा रहे तो इनके साथ में खुदा किसका साथ देगा ज़्यादा, आप मुझे बताइए। तो जीसस कहते हैं कि किसकी प्रेयर सुनी जाएगी। तो वाजिब है जिस व्यक्ति ने क्षमा मांगी है, क्षमा याचना की है, वह व्यक्ति का प्रार्थना सुना जाएगा। क्योंकि जो अपने आप को खुदा के सामने बहुत महान दिखाता है उसको कभी ना कभी खुद की खानी पड़ती है, ज़मीन में गिरना पड़ता है। और जो बेचारा गिरा होता है खुदा उनको उठाता है मतलब उनको और ताकतवर बनाता है, उनको अच्छा बनाता है। तो शायलॉक इसका रेफ़र करते हुए कहते हैं, हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन। तो पहला कारण क्या है शायलॉक का अंटोनियो से नफ़रत करने का? क्योंकि अंटोनियो एक क्रिश्चियन है। बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी he lends out money gratis and bring down the rate of usance here with us in Venice। लेकिन उससे ज़्यादा शायलॉक अंटोनियो से नफ़रत इसलिए करता है क्योंकि अंटोनियो बहुत ही सिंपल वे में लोगों को पैसा देता है, वह इंटरेस्ट नहीं लेता। अंटोनियो के पास कोई भी अगर उधार मांगने जाता है तो अंटोनियो उससे उधार देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जब पैसे वापस आएंगे तब आप मुझे पैसे लौटा देना। वो उनसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता और कोई समय सीमा भी नहीं रखता है। जबकि शायलॉक का तो ये बिज़नेस है, वह इसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाना चाहता है। क्योंकि अंटोनियो इंटरेस्ट नहीं लेता इसलिए शायलॉक को अपना इंटरेस्ट को बहुत लो रखना पड़ता है और इसलिए वह अंटोनियो से नफ़रत करता है, क्योंकि ये एक घाटे का सौदा करता है। अंटोनियो जो है वो घाटे का सौदा कर लेता है। इफ़ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम।
अगर एक बार मैं ये मेरे गिरफ्त में आ जाए, ये मेरे अड़ंगे में आ जाए, मैं उसे ऐसा डाव मारूंगा, इसे ऐसा सबक सिखाएगा कि हर वक्त उसे याद रहेगा। आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम, यानी जो मेरे दिल में इसके लिए नफ़रत है, वो अपने खुद के बारे में नहीं कहता है, वो अपने समाज के बारे में कहता है। एंशिएंट ग्रज यानी कई सालों से, कई सदियों से जूइश कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी से नफ़रत करते थे। तो इस नफ़रत का जो मैं परिणाम निकालूँगा, लोग डर जाएंगे, खौफ जाएंगे कि हमसे नफ़रत करने का अंजाम क्या होता है। ही हेट्स अ सीक्रेट नेशन एंड ही रेल्स इवन देयर वे मर्चेंट्स मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट। ये मेरे अंटोनियो जो है वो मेरे नेशन से, मेरे समाज से बहुत नफ़रत करता है और मेरा समाज को गंदा कहता है, गाली देता है सबके सामने। इवन देयर वे मर्चेंट्स डू कॉन्ग्रीगेट ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉरगिव हिम। वो कहता है कि मेरा पैसे कमाने का तरीका गलत है और मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, इसी तरीके से मैं पैसे कमाता हूँ, या मैं इंटरेस्ट लूँ या ना लूँ इसके ऊपर वह आपत्ति जताता है और मुझे गंदा कहता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो इस वजह से मैं इससे नफ़रत करता हूँ और अगर मैं इसे माफ़ कर दूँगा तो इसका जो श्राप है मेरे समाज के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैं इसे कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, मौका मिलते ही मैं बदला ज़रूर निकालूंगा। ऐसा शाइलॉक अपने आप से कहता है, अलग से कहता है। बसानियो देखता है कि शाइलॉक कुछ कह नहीं रहा है, वो शाइलॉक को सुन नहीं पाता है, तो कहता है शाइलॉक डू यू हियर। शाइलॉक कहता है आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी I cannot instantly raise up the gross of full 3,000 ducats. What of that? Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe, will furnish me. But soft, how many months do you desire? To Antonio, rest your fair, good signor. Your worship was the last man in our mouths. तो शाइलॉक बसाने से कहता है कि मैं अपने आप से बातें इसलिए कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरे पास आपको 3,000 डकेट्स मेरे पास है क्या आपको देने के लिए, तो ये बात मैं अपने आप से कर रहा था, इसलिए मैं आपको तुरंत जवाब नहीं दे पाया। वो कहता है कि लेकिन कोई इसकी चिंता करने की बात नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तो मेरा एक मित्र है, उसका नाम ट्यूबल है, ट्यूबल से मैं वो पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन कितने महीनों के लिए कहा आपने, ऐसा पूछता है उससे। और फिर अंटोनियो से पलट कर बोलता है, अरे अंटोनियो गुड सिग्नियोर, अभी हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे, आप ही जो व्यक्ति थे, हमारे ज़बान पर आप ही का नाम अभी चल रहा था। है ना, अक्सर क्या होता है अगर हम किसी का नाम ले और वो आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है यार, कितनी बड़ी उम्र है तुम्हारी। तो ये दिखाता कुछ और है शाइलॉक और उसके दिल में कुछ और चल रहा है। ये अंटोनियो की तरफ इतना वार्मथ दिखा रहा है कि हम अभी आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, मैं किस प्रकार से अंटोनियो को अपने जाल में फंसाऊँ और उसके शरीर से उसका दिल ही निकाल दूं। यानी अंटोनियो को मारने की बात सोच रहा था वो। अंटोनियो, शाइलॉक, एल्बेट, आई नाइदर लेंड नो बोरो बाय टेकिंग नोर बाय गिविंग ऑफ एक्सेस, येट टू सप्लाई द राइप वांट्स ऑफ माई फ्रेंड आई विल ब्रेक अ कस्टम। टू बेसानियो, इज ही येट पोजेस्ड, हाउ मच यू वुड। तो अंटोनियो आकर बिल्कुल शाइलॉक से साफ कर देता है कि शाइलॉक देखो, ना मैं ज़्यादा पैसा लेता हूँ, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो ना उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, और ना ही मैं जब किसी से पैसे उधार लेता हूँ ना मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट किसी को देता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त के खातिर मैं ये परंपरा तोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त को बहुत ज़रूरत है पैसों की। और वो बसानियो से पलट कर कहता है, बसानियो आपने बताया शाइलॉक को कि कितना पैसा चाहिए? तो शाइलॉक बोलता है, आए 3,000 डकेट्स। अंटोनियो कहता है, एंड फॉर 3 months। शाइलॉक, आई हैड फॉरगॉट 3 months। यू टोल्ड मी सो। वेल देन योर बॉन्ड एंड लेट मी सी, बट हियर यू मी थॉट यू सेड यू नाइदर लेंड नो बोरो अपॉन एडवांटेज। तो शाइलॉक बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि 3 महीने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे लगा कि मैंने सुना है कि आप इंटरेस्ट से पैसे लेते भी नहीं हो ना पैसे देते हो। अंटोनियो कहता है, आई नेवर डू इट, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तो शाइलॉक बोलता है, व्हेन जेकब ग्रेज्ड हिज अंकल लाबान्स शीप
This Jacob from our holy Abraham was, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor. I, he was the third. तो शाइलॉक फिर से एक और बिब्लिकल कैरेक्टर को यहाँ पर लेकर आता है। ये है जेकब के बारे में, जेकब और लबान के बारे में। इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में, जेकब और लबान से हम जो कहानी जो है, इस डायलॉग से हम अगले क्लास में ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का तो लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज की तारीख क्या है? ओके, तो यहाँ तक का आपको लेक्चर समझ में आऊँगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास रोकता हूँ और आई विल पुट अप सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई होप दैट यू आंसर देम बाय द इवनिंग।